Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos on the topic of rational numbers and mathematics for students studying in Class 8 under the CBSE board. These videos have been carefully curated to cover the entire CERT syllabus, ensuring that students receive a comprehensive understanding of this fundamental concept. Rational numbers are an essential part of the number system and play a significant role in various mathematical operations. This video series aims to simplify the understanding of rational numbers by breaking down complex concepts into easily digestible explanations. Students can now grasp the fundamentals of rational numbers with ease and confidence. The series covers a wide range of topics related to rational numbers, such as introduction to rational numbers, representation on the number line, operations on rational numbers, and their applications in real-life situations. Each video provides step-by-step explanations and examples to help students strengthen their problem-solving skills. With the help of these videos, students can now enhance their knowledge and achieve a deeper understanding of rational numbers. The engaging visual aids and clear explanations provided in this series will help students excel in their examinations and build a strong foundation in mathematics. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to providing top-quality educational resources, and this series on rational numbers is no exception. Students can access these videos at their convenience, making learning a fun and interactive experience. Don't miss out on this excellent opportunity to strengthen your mathematical skills and excel in your examinations. So today we'll start with rational numbers in 8th standard. Okay? Okay. Let's move ahead, people. Just one moment. I'll check that now. Is here. Okay. यार ये क्या है, एक मिनट है. Alright, so people will start with rational numbers. So numbers देखो आपके क्या क्या हो सकते हैं. पहला जैसे है आपका numbers क्या क्या है, 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा चलता ही जाएगा भाई साहब infinity तक. So what we call them here is natural numbers. Then we have a set of whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ये हो गया आपके whole numbers. ठीक है. Then we have set of integers. So integers are what, people? Let's say you have 0 in between, then win +1 +2 ऐसा infinity तक, और यहाँ पे -1 -2 ऐसा -infinity तक. ठीक है. So natural numbers, whole numbers and set of integers. These are 3 different sets that we have. Mostly we will be dealing with this. Now there is another thing which is known as rational numbers. Now what is a rational number? Rational number is of the format P by Q, where P is basically equal to an integer and Q is also equal to integer, but Q जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता. कभी भी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे बोलो. क्या 3/5 एक रैशनल नंबर है? यस है, क्योंकि P by Q फॉर्मेट में है. क्या -2 एक रैशनल नंबर है? कैसे है? -2/1. क्लियर है. ठीक है. अगर मैं बोलूं 7.5, इज दिस अ रैशनल नंबर? यस इट इज. हाउ इज इट अ रैशनल नंबर? बिकॉज 7.5 एक्चुअली मीन्स व्हाट, 75/10. सो इज दिस अ रैशनल नंबर? वेरी मच इट इज. ठीक है. ओके. सो इस तरह से आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे. आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेसिकली मिक्सचर्स किसके, रैशनल और इरैशनल के. ठीक है. रैशनल और इरैशनल के. नाउ इरैशनल, देखो रैशनल को अगर प्रॉपर्ली अच्छे तरह से समझना है तो हम पहले क्या समझेंगे कि इरैशनल क्या है. अगर आप डेसिमल्स देखते हो, ठीक है, डेसिमल्स, इफ वी कंसिडर डेसिमल्स, तो डेसिमल्स में जो आपका नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, एंड नॉट एंडिंग, या जिसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाले जो होंगे दे विल बी बेसिकली
इरेशनल नंबर्स, दोनों भी कंडीशंस आपके लागू होने चाहिए। नॉन रिपीटिंग, जैसे समझो यहाँ पे 1.34 5 6 1 2 3 ऐसा चलता ही जा रहा है, तो नेवर एंडिंग दिख रहा है और नॉन रिपीटिंग भी दिख रहा है, सो दिस विल बी अ इरेशनल नंबर। अगर मैं ऐसे लिखूं देखो 1.34 तो ये रैशनल हो जाएगा क्योंकि ये एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं देखो 1.344444 तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि 4 जो है आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके, वी विल सी, जस्ट गिविंग यू आइडिया हियर। सो विच टाइप ऑफ नंबर्स आर दिस? 1 2 3 4 ये हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स। दीज आर बेसिकली natural numbers and they are denoted by capital letter N. Natural numbers are denoted by capital letter N. Whole numbers are denoted by capital letter W. Integers are denoted by capital letter I. Somewhere it is Q as well. ठीक है? Okay, let's see. Now natural numbers हो गए ये, ठीक है? Zero is added to the above list. अगर हमने इस नेचुरल नंबर के लिस्ट में जीरो को ऐड कर दिया, इट विल बिकम होल नंबर्स। समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में बच्चा पार्टी डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीरो का है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो 0 1 2 3 4 इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, लेट्स मूव अहेड पीपल, ठीक है। इफ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स, तो अगर आपका नेगेटिव नंबर्स हो गया -1 -2 -3 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इज गिवन बाय आई। समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, there are two ways of representing the numbers. Now what do we mean by this? ठीक है, फ्रैक्शन, रेशियो एंड डेसिमल, ठीक है। हम फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बोल लो या रेशियो बोल लो, एक ही बात होगी। और डेसिमल, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला 3.2, ठीक है, तो ये आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? डेसिमल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। इसी को अगर मुझे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना रहा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा पार्टी? 3.2 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना रहा फ्रैक्शन में, तो दिस विल बी 32/10. So this can be written as 2 5s are 10, 2 16s are 32. So this will be how much? 16/5. Are we getting this, people? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो there are two ways. One is basically fraction or ratio, and the other one is decimal. So there are two ways of representing. One is fraction or decimal, and the other one fraction or ratio. Fraction बोल लो या ratio बोल लो, it's one and the same thing. Fraction and ratio means the same thing. And decimal basically means a decimal point. So there are two ways of representing it. Clear till here, people? Okay, चलिए, let us consider two fractions. So let's say 10/3, ठीक है, 10/3 है, and both can be called as ratio of integers. देखो भाई साहब, 10 आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और रेशियो ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स। जैसे 2/5, 2 भी एक आपका इंटीजर है, 5 भी आपका इंटीजर है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर फ्रैक्शंस, एंड सिंस बोथ आर फ्रैक्शंस, बोथ आर बेसिकली व्हाट? रैशनल नंबर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन, पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे भाई साहब। ओके, सो 10/3 रेशियो ऑफ इंटीजर्स, अगेन दिस विल बी ऑल्सो रेशियो ऑफ इंटीजर्स। रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो तो आपका भाई साहब देखो यहां से आता है, रेशियो से आता है आपका रैशनल नंबर्स। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? रैशनल नंबर्स, द नेम इटसेल्फ इज कमिंग फ्रॉम रेशियो। रेशियो से रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्मेट P/Q, वेयर P and Q both are integers and Q is basically what? Q is a non-zero integer. ये आपको ध्यान रखना है, Q आपका जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? Q अगर जीरो हो गया, अगर कोई भी नंबर है 4 है अपॉन 0 हो गया, तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। This will become indeterminate. It will have no value. इसका वैल्यू आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते। सपोजिटली जैसे समझो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लेट्स से लाइन है, मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का 4 भाग करो, ठीक है, 4 पार्ट्स कर दो। सो यू व्हाट यू आर डूइंग इज 1 2 3, यू हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक लाइन था और उसके 4 पार्ट कर दिया आपने, है ना, ठीक है, 4 पार्ट 5 पार्ट जो भी करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका 0 पार्ट करो तो क्या ये पॉसिबल होगा? 0 पार्ट कैसे करोगे? एक लाइन को तुम 0 में कैसे डिवाइड करोगे? 0 इज बेसिकली 0, है ना। तो इसीलिए अगर मैं 1/0 करूं तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू तुम डिटरमिन कर ही नहीं सकते, ठीक है। जिसके वजह से हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? इनफाइनाइट। इसका कोई वैल्यू नहीं है। एनी न्यूमरेटर व्हेन डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, विल ऑलवेज व्हेनेवर इन अ फ्रैक्शन you have the value of denominator as 0, the fraction will not have any value. Are we clear to this one, people? ठीक है, ओके। कुछ भी डाउट होगा प्लीज बीच में मुझे टोक कर पूछ लीजिए।
अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। पर शर्त क्या है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। रेशियो ऑफ एनी टू नंबर्स विल बी अ रैशनल नंबर बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। तो जैसे आपका 5 है, -3 है, 0 है, 0 1, ठीक है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, फॉर डेसिमल्स 10/3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.33333, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2/5 है, देखो। तो यहाँ पे देखो, अभी ध्यान से देखना, ये 10/3 है, इसको आप क्या बोल रहे हो? रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये किस टाइप का आपको डेसिमल मिल रहा है? रिपीटेशन मिल रहा है। देखो इररैशनल क्या होगा उसको समझ लो। इररैशनल इन डेसिमल, ठीक है। अगर आप डेसिमल में इररैशनल देखोगे तो डेसिमल में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दोनों कंडीशंस जब वैलिड होती हैं तभी जाकर वो रैशनल नंबर होगा। दोनों में से अगर कोई एक ही कंडीशन वैलिड हो रही है तो वो इरैशनल हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, रैशनल के बारे में मत सोचो, इररैशनल के बारे में सोचो। इररैशनल की कंडीशन क्या है डेसिमल में? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म ना हो और जो रिपीट ना हो, ठीक है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन हो रही है गिवन डेसिमल में तो वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, ये क्या आ रहा है तुम्हारा 3 पॉइंट, कैसे आया ये 3? देखो ये आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 3 जा 9, ये क्या हो गया 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, चलता ही जाएगा वैसा भी, तो नेवर एंडिंग है। हर बार आपका 1 ही आएगा, 1 से 0 होगा, फिर ऊपर 3 डालोगे, नेवर एंडिंग है वैसा। तो क्या यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन लागू हो रही है? यस, करेक्ट। लेकिन क्या यहां पे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग हो रहा है? क्योंकि 3 आ रहा है बार बार। देखो आपका, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3.3 ऐसे बार लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बार मतलब होता है रिपीट होना। तो यहां पे नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल एंड हेंस इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 2/5 देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या डालोगे? पहले तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, जैसे ही पॉइंट लगाओगे एक 0 आ जाएगा। 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.4। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो। क्या ये खत्म हो रहा है? टर्मिनेटिंग है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रैशनल नंबर हो गया। मैंने आपको क्या बोला है? इररैशनल में दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी जाकर ये इररैशनल होगा। दोनों में से अगर एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रैशनल हो जाएगा। आर बी क्लियर? ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.4 इज बेसिकली व्हाट? अ रैशनल नंबर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो इट्स रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। देखो ये सारे आपके जो है ना रिपीटिंग, ठीक है, देन वी हैव रेकरिंग, ये सब आपके सेम ही मीनिंग्स हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और बोले अगर हम नॉन रेकरिंग, दे आर ऑल द सेम, दे आर ऑल द सेम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q। सिंपल है, देखो रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p इज एन इंटीजर, मतलब ये 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, एंड q इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो मतलब p इज इक्वलेंट टू, हमें ऐसे लिखते हैं, इक्वलेंट टू इंटीजर, एंड q इज ऑल्सो इक्वलेंट टू इंटीजर, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो रैशनल नंबर इज बेसिकली रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर इन द डिनोमिनेटर पार्ट कैन नॉट बी 0, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है? -2 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बट 0, एनीथिंग बट 0, q कुड बी एनीथिंग बट 0। समझ में आ रहा है? अगर 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। सो यहाँ पे 2/5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.4। तो क्या हो रहा है भाई साहब? ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये तो भाई साहब टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, ओके। सो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रेकरिंग और अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। कोई अगर रिपीटिंग मोड में है या कोई अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा।
मतलब इरैशनल होने के लिए दोनों भी कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फॉर एनी डेसिमल नंबर टू बी इरैशनल इट हैज टू बी नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? अदरवाइज इट विल बी अ रैशनल नंबर। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सो देन इट विल बिकम अ रैशनल नंबर rather than irrational number. Are we clear to this one, people? Any questions? No? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Comparison of rational number. Let's understand this concept through an example. Okay, so mathematics score, let's say, ठीक है, this person has got 19 out of 20 and this person has got 13 out of 20. तो कोई टेस्ट हुआ है जिसमें इनको मिला है 19 और इसको मिला है 13. So who has scored more? Obviously this person, ठीक है। How are you saying this? कैसे है बता? डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल इसीलिए तो तुम बोल पा रहे हो, वरना अगर मैंने यहाँ पे 13/45 किया होता, अब बताओ कौन, तब तुमको वैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल यू कैन से दैट दिस पर्सन हैज गॉट मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन दिस पर्सन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। हु स्कोर्स बेटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स? ऑब्वियसली दिस पर्सन। परसेंटेज कैसा होगा? इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, इसको भी तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका परसेंटेज कितना चला आएगा बोलो? 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 + 4 9, सो दिस विल बी 95% एंड दिस विल बी हाउ मच? यहाँ पे ये 5 से गया तो ये हो गया 65%। सो दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 95% एंड दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 65%। इसका मतलब क्या है? देखो 20 मार्क्स का पेपर है तो उसको 19 मिला है, अगर यही पेपर 100 मार्क्स का होता तो उसको कितना मिलता था? 95। यहाँ पे 20 मार्क्स का पर्सन है, दिस पर्सन हैज गॉट 13, ठीक है। इफ दिस वुड हैव बीन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स दिस पर्सन वुड हैव गॉट 65, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। परसेंट मतलब हर 100 मार्क्स में आपको कितने मिल रहे हैं। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे 29/30, अभी 19/20। अब देखो क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे कितना है? 30 है और इसका यहाँ पे कितना है भाई साहब? 20 है। अब कैसे बोलोगे? अब तुम नहीं बोल सकते, अब तुमको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हाउ विल यू डू दिस? ठीक है, द टू रैशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड इफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 30 और 20 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या? एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं, देखो 20 और 30, ऐसा आप लोग कर चुके हैं, राइट? आई अज्यूम दैट यू हैव डन दिस। 2 10s are 20, 2 15s are 30, ठीक है, 2 5s are 10 और यहाँ पे हो गया 15, 3 5 3 5s are 15, 5 is 5 1, 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60, 60 हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे 60 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? 30 × 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसी नंबर से तुमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो हाउ मच यू गेट? 58, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। यहां पे 60 लाने के लिए बच्चा पार्टी क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 60 लाने के लिए 9 3s are 27, 3 1s are 3 4 5, तो आपका ये हो गया 58/60 एंड दिस वन इज 57/60। हु हैज स्कोर्ड मोर? ऑब्वियसली दिस पर्सन। सो यू विल से दैट yes 58/60 कहां से आ रहा है? 29/30 is more than 19/20, so again this person has scored more. Are we clear? ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली डिटरमिन करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे 20 है। डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स आर अनइक्वल, सो व्हाट डू यू डू? यू लेट्स मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का प्रोसेस क्या है? एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, okay. So we will basically put 30 and 20, which are the denominators. The first thing that we will divide by would be 2, because 30 and 20 both are even numbers and they would be divisible by 2, okay. So let's divide them. This is how we will divide. I hope everybody is clear about this. So what will be the LCM? 2 × 2 × 5 × 3, okay. So that gives you how much? 60. How do you get 60? From 30 by multiplying it by 2. So if you are getting 60 from 30 by multiplying it by 2, you will multiply 29 also by 2. So you get 58/60, ठीक है। So let's look at this. 30 × 2. So यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3. So this will be 58/60 and this will be 57/60, ठीक है। So 58 is greater than 57 and hence this is greater, okay. Compare the following pair of rational numbers. आपको यहाँ पे comparison करना है, ठीक है।
Again, what do you do, people? You see that the denominator part in both of them is unequal. So what do you do? First you have to make the denominators equal, only then you can compare. So what you will find out, whose LCM would you find out? What are the numbers that you will find LCM for? 32 and 24. So let's put 32 and 24 out here. Okay, so 2 16s are 32, 2 12s are 24, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4 और ये हो गया 3, 2 1s are 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 3 and 1. So you have the entire multiplication, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 3. So that gives you 2 3s are 6, 96. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट. 15 और ये हो गया 32. मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? 96. सो व्हाट डू आई मल्टीप्लाई 32 विद? देखो अभी फिर से इसको डिवाइड मत करने मेरा. देखो यहाँ पे क्या है? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. 32 into 3 किया तो तुमको क्या मिल रहा है? 96. So obviously 32 into 3 कर दो यहाँ पे, and then you multiply the numerator by the same number. So what do you get? 45 by 96. Are we clear on this one, people? ठीक है? Okay. In the same way we will proceed here. 17 by 24 और ये आपका 96. So 24 go this way. 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. तो इस 24 को you are multiplying with what? 4. ठीक है? So 24 into 4 and then 17 into 4. 7 4s are 28, 68. So out of these two, that is 45 by 96 and 68 by 96. Which one is greater? Obviously 68 by 96 is greater, which means 17 by 24 is greater than 15 by 32. Are we clear? That was what was required in this problem. ठीक है? Okay. 15 32. So let's take out the LCM here. This would be the LCM. That is how we will calculate the LCM. So this is 96. So 32 into 3, 17 into 4, so that will be 45 by 96 and this will be 68 by 96. Both are having the same denominator, which is 96. Now we can very well and easily say that 68 is greater than 45. So now for 68 is greater than 45, so we will have 17 by 24 is greater than 15 by 32. Are we clear to this one, people? Okay. Compare the following pair of rational numbers. चलिए इसको करना है, कीजिए. Try it out, people, quick. Okay, done, people.
Are we done? Easy, easy. देखो, try and understand. Irrespective of whether the minus sign. Okay. Let me ask you this. Before we go into this, -3 and -2, which one is greater? -2 is greater. Why? Because in number line, whenever you have something on the right hand side, it will always be greater than the number on the left hand side. So here we have 0, 1, 2, 3, and here we have -1, -2, -3, and so on and so forth. So -2 is on the right hand side of -3. So -2 will be greater than -3. Okay. Now understand this, people, that whenever you have a minus sign, irrespective of whether it is with the denominator or it is with the denominator or it is with the numerator, the fraction itself will be negative. तो इसमें fraction आपका negative हो जाएगा. ठीक है, clear है? So let's say we have, what can we write this as? This can be written as -7/24, and this can be written as -9/20. Now what you need to do is find out the LCM of 20 and 24. ठीक है? How do we do this, people? So this is basically 20 and 24. 2 10s are 20, 2 12s are 24, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6, and this is 5. This is how much? 3 1s are 3, and this is 5, and this is how much? 5 1s are. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120. So what is this LCM? This LCM is equal to 120. ठीक है? So -7/24. This is equal to 120. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120. So 24 into 5, 7 into 5, -35/120. ठीक है? Clear है? Okay. Let's take this one. -9/20, and this is equal to 120. 20. One second. Let me be finished with this. 20 into 6, and this will be 96. So how much will this be? -54/120. ठीक है? Okay. So let's place these two. -35/120 -54/120. ठीक है? Now out of these two, which one is greater? -35, because it is minus. ठीक है? Just as we say that -2 is greater than -3, so here also -35 will be greater than -54. So this is what it is coming from, -7/24, and this is coming from -9/20. That's how we will basically compare. Are we clear to this one, people? ठीक है? Okay, so -7/24. So let's make the denominators first of all equal. ठीक है? Let's make the denominators equal. Let's take the LCM of the denominators. तो यहाँ पे हो गया 24 20, 2 12s are 2 6 3 5. ठीक है? And this is 1 and 1. So LCM of 24 and 20 is how much? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 8 24, 24 5s are 120. So let's take first 24. 24 into what will be 120? 24 into 5. So -7 into 5. So that will be how much? ठीक है? -35/120 -54/120. These are equal denominators. ठीक है? Okay. Now we compare the numerators. ठीक है? So यहाँ पे -35/120 will be more than -54/120. As I have said, this is minus, but the number is less. So ये इससे ज़्यादा होगा. So we can say because -35 is definitely more than -54. ठीक है? Clear है? तो मुद्दा ये है कि whenever you are comparing two negative numbers, the number with a lesser value will be more. उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. ठीक है? Second thing is, irrespective of whether the minus sign is with the numerator or the denominator, the total fraction will be negative. ठीक है? Now let's say if we had something like this, तब क्या होता था बोलो? ये दोनों कैंसिल हो जाता था, and this would have been positive. ठीक है? If this would have been the case. Are we clear on this one, people? ठीक है? हाँ, बोलो. Sir, 9/-20 जो -20 है उसको माइनस से 9 न्यूमरेटर में डाल सकते हैं. न्यूमरेटर में ही डालना पड़ेगा. तुम्हारा कोई भी देखो, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर में है, एक्चुअली फ्रैक्शन नेगेटिव है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. -7/24 actually means -7/24. 9/-20 actually means -9/20. That is what it means. ठीक है? Let's keep it simple. Irrespective of wherever the negative number is, whether it is with the numerator or whether it is with the denominator, your fraction will be negative. Are we clear on this one, people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है? Your fraction itself will be negative. Okay.
So we will do this tomorrow. We'll start